start with the circle. Circle. So first we'll consider the definition of circle. All of you know the definition of circle. Yes? So circle, what is circle? Circle is the set of all the points. It's a set of points lies in a plane. Set of all the points which lies in a plane. है ना? Set of all the points which lies in a plane whose distance from the fixed point is always equal. Done. This is the definition of circle. So here, if you want to form one circle, we require set of all the points. Which set of points? Whose distance from the fixed point. Two words are there. Whose distance from the fixed point is always equal. So one fixed point is there. Suppose this is one fixed point. Let's say point C. Now consider one point, suppose P1. This is point P1. This point P1 lies in a plane of this paper. Done. So distance of this point P1 from the center is, assume that it's a R. Done. So distance of this point P1 from the fixed point C is R. Again, let's consider one another point. Suppose that another point is point P2 and the distance of this point P2 from this fixed point C is also R. Done. Second point. Consider one more point, that is point 3. And the distance of this point 3 from this fixed point is again R. So tell me total how many possible points are there whose distance from this fixed point is equal? We are getting infinite points. Infinite points are there. Done. So अगर इसको हम join करेंगे, so we are getting one figure that is known as circle. Clear? This is the definition of circle. Set of all the points which lies in a plane whose distance from the fixed point is always equal. Done? Now, here this fixed point, that fixed point is nothing but the C, is known as center of circle. Done? ये जो fixed point है उसको हम क्या बोलेंगे? That fixed point is known as center of circle, and this equal distance, or we can say constant distance, the distance which is equal to R is known as radius of circle. Done? So this is the definition of circle. Center C and radius R. Apart from this, various definitions are there. Radius, then chord, है ना? उसके बाद arc, diameter, वो सब आपको पता है ना? उसकी अभी कोई जरूरत नहीं है, तो एक बार वो आप रिवाइज कर लेना. Now, important point is to derive the equation of circle. We have to derive the equation of circle. जैसे हमने स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन डिराइव किया था, बाय सिमिलर मैनर वी हैव टू डिराइव द इक्वेशन ऑफ सर्कल. सर्कल का इक्वेशन क्या होगा? देखो, वी हैव डिफाइंड द सर्कल विथ सेंटर एंड रेडियस. So let's assume we are given one circle. This is one circle whose center is C. Done. And let's suppose one given point, ना, we have to consider one general point. ना, suppose लाइन का इक्वेशन फाइंड कर रहे थे, तभी हम क्या कर रहे थे? लाइन के ऊपर एक जनरल पॉइंट ले रहे थे. So here again we have to assume one general point on a circle. On a circle there are infinite points. Out of that infinite points, let's assume one general point is P and whose coordinates are xy. है ना? इसमें किसी को तो कुछ डाउट नहीं है, एक जनरल पॉइंट लेना पड़ेगा इक्वेशन के लिए.
and let's assume the coordinates of this point C, है ना, C is one point lies in a plane and a coordinate plane, and we have to assume its coordinates. So let's assume that center C and its coordinates are h comma k. Coordinates of center of circle, that is point C, whose coordinates are h comma k, है ना, ये हमने अज्यूम किया. इसमें किसी को कुछ डाउट? मैथ्स वाले हैं तो सब कुछ अज्यूम ही करना पड़ेगा. तो सेंटर अज्यूम कर लिया, पॉइंट ऑन अ सर्कल अज्यूम कर लिया, and according to definition this is the distance, है ना, distance from point C to point P. The distance is nothing but one length, and that length is defined as radius of circle. Is that clear? ये डायग्राम में सब कुछ आ गया. इसमें किसी को कुछ डाउट? सेंटर अज्यूम किया, सर्कल के ऊपर एक पॉइंट अज्यूम किया, but the distance between that point and center of circle is nothing but the radius of circle. So now क्या कर सकते हैं बोलो? इसमें से आपको क्या दिख रहा है? डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस बिटवीन, हाँ, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट इज आर. सो डिस्टेंस दैट इज CP equal to R, that is by our distance formula. This is by distance formula. Is that clear? According to distance formula, CP equal to R. Now can you apply distance formula for this circle? है ना, क्या होगा देखो, h में से x सब्ट्रैक्ट करेंगे, या फिर जनरल पॉइंट ले लिया है तो x माइनस करो, चलो फिर से x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू r, है ना, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड. So we are getting x minus h whole square plus y minus k whole square equal to r square. आ गया इक्वेशन. दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल. डन. दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल. Is equation of circle. Which circle? Equation of circle with center h comma k and रेडियस. व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल? r. तो अभी आपको दिया है कि सपोज सेंटर ऑफ सर्कल इज h कॉमा k, है ना, h k, and whose radius is r. What is the equation of circle? We will write this equation of circle. Done. Now one special case that is if center of circle lies on origin, है ना, क्योंकि हमने जो प्लेन कंसिडर किया है वो कोऑर्डिनेट प्लेन है. कोऑर्डिनेट प्लेन पर सपोज ओरिजिन पर ही हम इसका सेंटर ले लें. Done. So equation of circle, if center of circle lies at origin, है ना, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0 0. सो इफ द सेंटर ऑफ सर्कल लाइज एट द ओरिजिन, तो ये क्या हो जाएगा? 0 0. सो फॉर दिस केस इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी, ये दोनों आपको 0 ले लेना है, तो क्या होगा? x माइनस 0 होल स्क्वायर, so it's x square plus y minus 0 whole square, so it's a y square equal to r square. So this is another form of equation of circle when center of circle lies on origin, है ना, with radius. ये जो इक्वेशन इसके अंदर सर्कल की रेडियस क्या होगी? r, और यहाँ पर सेंटर ऑफ सर्कल क्या होगा? ओरिजिन 0 0. So this is the equation of circle when center of circle lies at origin. क्लियर? इक्वेशन ऑफ सर्कल स्टूडेंट्स. इसमें किसी को कुछ डाउट? नहीं ना? चलो एक न्यूमेरिकल्स करते हैं इसके बेस पर, है ना, कैसे करना होगा देखो. हियर यू डिराइव्ड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, है ना. इसके बाद आएगा जनरल इक्वेशन. तो जनरल इक्वेशन क्या होता है देखो, पहले तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन को स्टडी करते हैं. सो वन एग्जांपल व्हिच इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. क्वेश्चन इज
find the equation of circle. What you have to do? Equation of circle derive करना है. Find the equation of circle. Center of circle is -3 2 and radius of circle is 4. So here we have to write the equation of circle. Done. क्या करना है? जो स्टैंडर्ड इक्वेशन में है उसमें एच के की वैल्यू -3 2 पुट करनी है और आर की वैल्यू 4 पुट करनी है. डन. सो विल गेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल. सो आवर आंसर इज, पहले फॉर्मूला लिखेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल. व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल दैट वी हैव डिराइव्ड? x minus h whole square plus y minus k whole square equal to r square is the standard equation of circle with center h comma k and radius is r. So here values are given. Center of circle is -3 comma 2 and radius of circle is 4. Put these values. Therefore this one is x minus h. It's x minus -3. So it will be plus 3. X plus 3 whole square plus y minus k. K is 2. Y minus 2 whole square equal to r square. R is 4. 16. Done. ये इक्वेशन को हम कौन सा इक्वेशन बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन. ये कौन सा इक्वेशन है? स्टैंडर्ड इक्वेशन. जो डिराइव करते हैं ना वो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है. और जो अल्टीमेट आपका फॉर्म आएगा लास्ट में सिंप्लीफाई करके उसको हम जनरल फॉर्म बोलेंगे. जैसे स्ट्रेट लाइन में था जनरल फॉर्म, है ना? स्ट्रेट लाइन के डिफरेंट स्टैंडर्ड इक्वेशन थे, लेकिन जब उसको सिंप्लीफाई करते थे तो जो इक्वेशन आता था वो कौन सा था? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, है ना? कोई भी आप स्टैंडर्ड इक्वेशन ले लो स्ट्रेट लाइन का, उसको जब हम सिंप्लीफाई करते थे तो लास्ट में जो अल्टीमेट फॉर्म आता था वो कौन सा आता था? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 आता था. दैट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इज नोन एज जनरल इक्वेशन. Similarly, in this case of circle, this is the standard equation. And if we simplify this equation, we are getting one general equation. So we have to study that general equation. देखो इसका simplification करो. It's a x plus 3 whole square. So x square plus 6x plus 9. Y minus 2 whole square. So it's a y square minus 4y plus 4. Taking 16 on the left hand side, so it's a minus 16 equal to 0. Simplify this. It's a x square plus y square. देखो ये लिखा, उसके बाद ये लिखा, rearranging the terms, plus 6x, उसके बाद ये, उसके बाद minus 4y, ये वाला. डन. तो अभी ये देखो इसका क्या होगा? प्लस 9 प्लस 4 13 माइनस 16 माइनस 3 इक्वल टू 0, है ना? सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल. और ये कौन से फॉर्म में आया? देखो ये जो फॉर्म है उसको हम बोलेंगे जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन. जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल. और ये जो फॉर्म है उसको अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो ऐसे होगा. इट्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, है ना? ये फॉर्म में लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0. This form is known as general form of equation of circle. General form of equation of circle. Is that clear, students? Two forms are there: standard form of equation of circle and general form of equation of circle. है ना? In this standard form, hk is the center of circle and r is the radius of circle. While in this general form, है ना, x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. In this form, if you want to write the center, so center will be, है ना, यहाँ से मिलेगा g and f. So minus g minus f is the value of the center coordinates, value of the coordinates of the center of circle, and radius r will be square root of g square plus f square plus c, sorry minus c. G square plus f square minus c is the value of radius of the circle. डन. कैसे आया? वेरीफाई करें, है ना? जनरल फॉर्म को वेरीफाई करें. देखो ये केस में क्या था? फॉर दिस केस वी आर गिवन सेंटर ऑफ सर्कल एंड रेडियस ऑफ सर्कल. वी हैव डिराइव्ड द इक्वेशन ऑफ सर्कल. नाउ लेट्स अज्यूम another form, another example in which
Suppose we are given equation of circle x square plus y square plus 6x minus 4y minus 3 equal to 0. Equation of circle is given. Now question is find its center. Find its center and radius. Radius and center ये निकालना है ना? तो बोलो कैसे करेंगे? Two methods are there, है ना? Two methods will be there. Let's check them one by one. Given general equation is x square plus y square plus 6x minus 4y minus 3 equal to 0. Compare this given equation with the general form. It's a x square, है ना? ये लिख रहा हूँ x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. Comparing these both equations, we have to find the center as well as radius. What is the center? Minus g minus f. So here, what is the value of this 2g? Twice of g equal to 6, and therefore g will be 3. Value of g is 3. And compare this coefficient of y, twice of f, that is equal to minus 4. So value of f is minus 2. Done? And similarly, value of this c is minus 3. Clear? Value of c is minus 3. So now we can write coordinates of center as well as radius. So what is the center of circle? Center of circle is minus g minus f, and that is equal to minus g करेंगे. So it's a minus 3 minus f, so it will be 2. So center of circle is minus 3 comma 2. Already given. देखो ये रहा. Understood? Same way, radius. We can write the radius. Formula is square root of g square plus f square minus c. Put the values. G square 3 square 9 plus f square minus 2 square plus 4 minus c. Minus c, c is minus 3, minus minus plus, so it's a plus 3. क्या होगा? 9 plus 4 13 plus 3 16. Square root of 16 is 4, so radius is 4. So r equal to 4 units is the radius of circle. आ गया है ना? दोनों टाइम के क्वेश्चंस आ सकते हैं. Is that clear? General form and standard form of equation of circle. सारे बच्चों के वीडियो ऑन है या सिर्फ सेल्फी ले रहे हो? चलो ये समझ में आ गया सबको, है ना? मैंने आपको बोला कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन, इस पर से आप सेंटर और रेडियस डिराइव करनी हो तो जनरल फॉर्मूला का यूज करके आप कर सकते हो, या फिर एक दूसरा ऑप्शन भी है हमारे पास. देखना चाहेंगे? दूसरा ऑप्शन बोलो, किसी के पास आइडिया है? जोया बोल दो कैसे करेंगे इसको. ये इक्वेशन का यूज करके हमें ये फिर लेके आना है और ये यूज नहीं करना है फॉर्मूला. तो ये जो प्रोसीजर किया ना हमने फर्स्ट इक्वेशन में, इसको रिवर्स कर दे ऊपर, है ना? अगेन देखो, दोनों को साथ में कंपेयर करवा दें. कंपेयरिंग विद बोथ दी सम्स, सेम इक्वेशन, है ना? ये वाला क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x minus 4y minus 3 equal to 0 is the general equation, है ना? General form of equation of circle. Find its center and radius. Done? तो ये जनरल इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और इसकी सेंटर और रेडियस क्या है वो हम दिखाएंगे क्या है इसका. चलो, so start with this. X square plus y square plus 6x minus 4y minus 3 equal to 0. Now all of you know completing square method, है ना? नाम सुना होगा शायद. It's a x square plus 6x. Rearranging the terms, x square plus 6x plus y square minus 4y minus 3 equal to 0. है किसी को पता? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, स्टैंडर्ड 10 चैप्टर नंबर 4. Find the square root of quadratic equation by completing square method.
नहीं याद है, लॉकडाउन में सब गया। चलो, सो हियर दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज मिडल टर्म, वी हैव टू राइट दी लास्ट टर्म, है ना। तो लास्ट टर्म फाइंड करने के लिए मैं तो ऐसा करवाता हूँ कि जो मिडल टर्म का जो कोफिशिएंट है ना उसको 2 से डिवाइड करो, और जो है उसका स्क्वायर यहाँ पर ऐड करो, उसको सब्ट्रैक्ट करो, है ना। तो आपको लास्ट टर्म मिल जाएगी। ये सब समझ में नहीं आ रहा है तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला है होता है ना, मिडल टर्म स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म स्क्वायर, तो अभी आपको ये लास्ट टर्म मिल जाएगी। इट्स एक्स स्क्वायर प्लस 6x, 2 से डिवाइड करो तो 3 का स्क्वायर 9 ऐड किया और 9 सब्ट्रैक्ट किया, तो ये आपको परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल मिल जाएगा। प्लस इसके लिए वाई स्क्वायर माइनस 4y मिडल टर्म, है ना, इसका कोफिशिएंट -4 है, 2 से डिवाइड करो, -2 स्क्वायर करो प्लस 4, -4 सब्ट्रैक्ट कर दो, जो ऐड किया वो सब्ट्रैक्ट कर दिया। उसके बाद -3 तो ऐसे ही था, इक्वल टू 0, तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल आ गया। डन। सो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, so factorization is x plus 3 whole square, y square minus 4y plus 4, so factorization is y minus 2 whole square, और ये सबको साथ में ऐड कर दो, -9 -4 -13 -3 -16, so that will be +16। डन। तो ये कौन सा फॉर्मूला आ गया देखो, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, कंपेयर करो आप। सो हियर वी आर गेटिंग h इक्वल टू -3, h इक्वल टू -3 एंड k इक्वल टू 2, दिख रहा है ना सबको, r इक्वल टू 4। सो हियर वी कैन से सेंटर ऑफ सर्कल इज h कॉमा k -3 2 एंड रेडियस r इक्वल टू 4। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। इज दैट क्लियर? पक्का? वेरी गुड। Okay, now next we will derive पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल, है ना, पैरामीट्रिक इक्वेशन। चलो देख लेते हैं उसको भी। स्टैंडर्ड फॉर्म सीख लिया, जनरल फॉर्म सीख लिया, अभी एक को और फॉर्म होता है पैरामीट्रिक इक्वेशन। इसका यूज आएगा स्टैंडर्ड 12 चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 6 में आएगा, है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एज वेल एज चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, चैप्टर नंबर 9, है ना, वहां पर हमारा पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल यूज होता है। तो वहां पर फिर से मुझे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो यहीं पर आप कर लेते एक बार। देखो, व्हाट इज द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल? पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल, है ना, पहले तो इसको हम जनरल फॉर्मूला, है ना, पहले इसको ओरिजिन पर रखेंगे सर्कल को, उसके बाद उसको शिफ्ट करेंगे सर्कल के सेंटर को और फॉर्मूला डिराइव करेंगे। सो लेट्स अज्यूम दैट आवर गिवन सर्कल लाइज ऑन ओरिजिन, ये जो सेंटर है ना वो 0 0 है, थोड़ी सी छोटी डायग्राम हो गई। सेंटर, नाउ लेट्स अज्यूम वन पॉइंट P which lies on a circle, एंड एक और पॉइंट हमने अज्यूम कर लिया ऑन सर्कल, है ना, बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट ऑन अ सर्कल। ये हमारा जनरल पॉइंट P, उसके अलावा एक और पॉइंट हमने अज्यूम कर लिया। सपोज कोऑर्डिनेट्स आर x, y, कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट x, y, है ना, और ये रेडियस कांस्टेंट रहेगी, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। डन। तो देखो ये पूरा सर्कल हमारा एक कोऑर्डिनेट प्लेन में है, एंड हियर दिस पॉइंट P इज देयर, सपोज इसको हम P1 बोल दें, है ना, उसके बाद P2 P3 P4 Pn पॉइंट्स आर देयर। जैसे जैसे ये पॉइंट सर्कल पर मूव करता है, देखो यहाँ से, है ना, जैसे जैसे ये पॉइंट सर्कल पर मूव करेगा वैसे वैसे ये जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है ना वो चेंज हो रहे हैं। यस और नो? कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट P विल बी चेंज एज दिस पॉइंट मूव्स ऑन दिस सर्कल। यस, है ना। सो वन पैरामीटर, वी कैन से वन पैरामीटर, सपोज दैट पैरामीटर थीटा इज देयर, है ना, हम ये बोल रहे हैं कि ये जो पैरामीटर थीटा है ना, जैसे जैसे ये पैरामीटर थीटा, अब ये सर्कल जैसा दिख रहा है लेकिन मैंने वो थीटा लिखा है ना, जैसे जैसे पैरामीटर थीटा चेंज हो रहा है ना, जैसे ये सर्कल का पॉइंट्स मूव करेंगे
सपोज यहाँ पर आ गया तो ये थीटा की वैल्यू चेंज हो रही है. सो हियर वी कंक्लूड दैट एज द वैल्यू ऑफ थीटा चेंज, the value of this parameter change. Done. So coordinates of the points which lies on a circle are changed according to one parameter, and that parameter is nothing but the theta. ये statement सबको accept हुआ? The coordinates of all the points which lies on a circle are going to be changed with the change in this parameter theta. जैसे जैसे हम पैरामीटर थीटा की वैल्यू चेंज करेंगे वैसे वैसे सर्कल पर जितने भी पॉइंट्स है ना सबकी वैल्यू चेंज होगी. अल्टीमेटली ये जो कोऑर्डिनेट्स है ना एक्स एंड वाई वो हमें सर्कल का इक्वेशन देगी, है ना. इक्वेशन क्या होता है? कोई भी पॉइंट पर आप उसके कोऑर्डिनेट्स ले लो तो उसके बीच का रिलेशन होना, एक रिलेशन देगा. दैट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल. तो यहाँ पर एक्स वाई का जो रिलेशन वो चेंज हो रहा है कब? जैसे थीटा वेरी हो रहा है. इतना समझ में आया? डन. ओके चलो थैंक यू. ये पॉइंट पी है, उसके कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई है. अभी यहाँ पर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा हूँ, शायद दिखेगा तो नहीं, कलरफुल पेन यूज करते हैं. देखो ये अभी ये दिखने लगा है ना. ये वर्टिकल ले लिया पॉइंट, ये हॉरिजॉन्टल ले लिया. सो कैन वी से दिस लेंथ है ना, ये वाली लेंथ दिस विल बी इक्वल टू वाई एंड ये लेंथ दिस विल बी इक्वल टू एक्स, है ना. ऐसे ट्राइंगल बना है ना. ये जो है वो वाई हो गया, यहाँ से लेके ये आपका एक्स हो गया और ये आपका थीटा हो गया, और ये जो है हमारा रेडियस आर है. दिस इज अवर राइट एंगल ट्राइंगल. क्लियर? So what is the definition of cos theta and sin theta? Here our cos theta and sin theta. बोलो. Sin theta is opposite side by hypotenuse and cos theta is adjacent side by hypotenuse. So x by r. So can we write x equal to r cos theta and y equal to r sin theta? है ना. दोनों कोऑर्डिनेट्स को अभी हमने डिफाइन कर दिया इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर थीटा, बिकॉज एज द वैल्यू ऑफ थीटा चेंजेस the value of these x and y coordinates which lies on a point are changes. So x equal to r cos theta, y equal to r sin theta is the parametric equation of this circle when circle lies on the origin. ये origin पर है. Is that clear? Parametric equation of circle clear हुआ? ओके चलो अभी एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना. नाउ अभी ये जो सर्कल था हमारा ओरिजिन पर था, अभी हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं, है ना. इसको शिफ्ट कर रहे हैं हमारे प्लेन में. ये ओरिजिन पर था, अभी ओरिजिन से उसको शिफ्ट करके यहाँ पर फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है वहां पर ले आए, है ना, क्योंकि हमें जनरल इक्वेशन चाहिए. हर बार सर्कल हमारा ओरिजिन पर ही रहेगा ऐसा फिक्स नहीं है. तो अभी ये सर्कल जो ओरिजिन पर था उसको शिफ्ट करवा के ये जो पॉइंट है ना वहां पर ले आए. सपोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट आर एच कोमा के, है ना, एच कोमा के पर ले आए. तो अभी इसका हमें दूसरा पैरामीट्रिक इक्वेशन फाइंड करना है. ये रही इसका पॉइंट पी, यहाँ पर कोऑर्डिनेट से एक्स कोमा वाई, है ना, और यहाँ पर एंगल है थीटा. बोलो क्या चेंजेस आएंगे? तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ. देखो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एच कोमा के हैं. दैट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस मिलेंगे. इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल आर एच कोमा के, so this will be value of h and this will be value of k. ये yes or no? और यहाँ से लेके ये पॉइंट है ना, ये x कोमा y लिखा है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x कोमा k. तो ये पॉइंट, तो यहाँ से इसका प्रोजेक्शन ले, तो दिस विल बी द लेंथ ऑफ x, है ना. कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट p और जनरल पॉइंट p1 आर x कोमा y. So this distance यहाँ से लिए x होगा. Similarly this will be value of y. कौन सा? ये वाला, यहाँ से लेके ये. This is the value of y. Visualize हो रहा है ना. This is center, कुछ coordinates are h कोमा k. तो यहाँ से ये h हुआ और यहाँ से ये k हुआ, है ना. अलग कलर से करें. ये h हुआ और ये k हुआ. ये विजुलाइज हुआ. और ये डिस्टेंस कितना है कौन बताएगा मुझे? ये वाला, है ना. ये रहा. देखो ये वैल्यू x की वैल्यू क्या है? x इक्वल टू आर कॉस थीटा, है ना. ये डिस्टेंस, ये वाला x नहीं, ये वाला मैं बोल रहा हूँ यहाँ से. और ये जो y, इतना डिस्टेंस वो कितना है? r साइन थीटा.
तो अभी दोनों को ऐड करें तो वो हमारा अल्टीमेट ये जो x है वो मिलेगा, है ना। ये डिस्टेंस कितना है, r cos थीटा, है ना, यहाँ पर फाइंड किया ना, दिस डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू r cos थीटा। तो अभी पूरा x क्या मिलेगा, और x विल बी h प्लस दिस डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितना, r cos थीटा। सो x इक्वल टू h प्लस r cos थीटा, और ये पूरा y कितना, ये डिस्टेंस दैट मीन्स k प्लस इतना डिस्टेंस, ये कितना, ये y जितना, r sin थीटा। डन। दिस इज द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन सर्कल लाइज एट द पॉइंट h, k। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? अभी देखो, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन था, पैरामीट्रिक इक्वेशन सर्कल विच लाइज ऑन ओरिजिन, और उसके पहले हमने डिराइव किया इक्वेशन ऑफ सर्कल विच लाइज एट ओरिजिन। क्या था वो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये इक्वेशन था, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच लाइज एट द ओरिजिन, है ना। तो ये दोनों के बीच में कुछ रिलेशन होगा, ये दोनों के बीच में, यस और नो, बिकॉज दिस इज द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल विच लाइज एट ओरिजिन, है ना। तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है, तो ये दोनों के बीच में रिलेशन होगा। देखो इसको डिराइव करते हैं यहाँ पर, व्हाट इज द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल विच लाइज एट ओरिजिन, तो ये हमने डिराइव किया, x इक्वल टू r cos theta and y equal to r sin theta is the parametric equation of circle which lies at origin. So from this we can write cos theta equal to x by r and sin theta equal to y by r. Done. Now our identity sin square theta plus cos square theta equal to 1. Put these values. It's x square plus r square plus y square by r square equal to 1. Take r square common. So here we are getting x square plus y square equal to r square. आ गया यहाँ से ये. So both relations are equal. Is that clear, students?